ایک ادھر ایک نظر روٹھ کے جانے والے دے دیں گے جان او جان جان چاہے کبھی آزما پیار کیا ہے. دوستو پاکستان ہو یا بالی ووڈ دونوں میں فلمی جوڑیاں ہمیشہ ہی سے فلم بینوں کی توجہ کا مرکز رہی ہیں. برصغیر پاک و ہند میں ایک دور ایسا بھی تھا جب ان جوڑیوں کی وجہ سے فلمیں باکس آفس پر راج کرتی تھیں، جیسے سبیہ سنتوش کی جوڑی، ندیم شبنم کی جوڑی، سلطان رائی اور آسیہ کی جوڑی بہت پسند کی گئی تھی. دوستو اداکارہ بابرہ شریف نے اداکار شاہد سے طلاق لی تو وہ شاہد کی بے وفائی کی وجہ سے ٹوٹ کر رہ گئیں، لیکن پھر جب سنبھلی تو اس نے شاہد کی بے وفائی کا بدلہ تو شاہد سے نہ لیا مگر ایک ابھرتے ہوئے ہیرو کی اس نے زندگی تباہ و برباد کر دی. دوستو اداکارہ بابرہ شریف نے اداکار شاہد سے طلاق لے لی تو وہ شاہد کی بے وفائی کی وجہ سے ٹوٹ کر رہ گئیں، لیکن پھر جب سنبھلی تو انہوں نے شاہد کی بے وفائی کا بدلہ شاہد سے تو نہ لیا مگر ایک ابھرتے ہوئے ہیرو کی زندگی تباہ کر دی اور اسے نشے کا عادی کر دیا. یہ کیسے ہوا، کب ہوا، ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں، اس لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ. بابرہ شریف نے اداکار شاہد سے جب طلاق لی اور سیپریٹ ہو گئی. بابرہ شریف سے شادی سے پہلے اداکار شاہد نے جو وعدے کیے تھے ان میں سوائے ایک وعدہ کہ میں تمہیں ایک بڑا گھر لاہور میں دلواؤں گا اس کو ہی انہوں نے پورا کیا تھا. تب اداکار شاہد سے علیحدگی کے بعد بابرہ شریف نفسیاتی مریضہ ہو گئی تھیں. بظاہر تو وہ دکھائی دیتی تھیں کہ بے پرواہ ہیں، بے تعلق ہیں، لیکن وہ بیمار رہنے لگی تھیں کیونکہ بابرہ شریف نے شاہد کو دل و جان سے چاہا تھا اور اس نے اسے ٹوٹ کر محبت کی تھی. اداکار شاہد اس کی پہلی محبت تھی، یہی وجہ تھی اس نے وہ سب کچھ برداشت کیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. بابرہ شریف نے شاہد کو پانے کے لیے اپنے گھر والوں سے ٹکر لے لی تھی اور ان کو ناراض بھی کر لیا تھا کیونکہ بابرہ شریف کی بہنیں فاخرہ وغیرہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ شاہد سے شادی کرے. بابرہ کی بہنوں نے بابرہ شریف کو بہت سمجھایا کہ شاہد پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، مگر کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور اسی لیے اس وقت بابرہ شریف کی آنکھوں پر شاہد کی محبت کی ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ اسے اس کے سوا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ اداکار شاہد ہی بابرہ کا پہلا اور آخری سچا پیار تھا. کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کچھ زخموں کے ٹھیک ہونے کے باوجود ان کا نشان باقی رہ جاتا ہے. بابرہ شریف نے جب شاہد سے طلاق لی اس وقت وہ ایک معروف ہیروئن تھی جس کے پاس کام کی کمی نہ تھی. فلم ساز اسے منہ مانگا اپنی فلم کا معاوضہ دیا کرتے تھے اور اردو فلم بنانے والے ہدایتکاروں کی اولین ترجیح میں وہ شامل تھیں. مگر شاہد سے طلاق لینے کے بعد بابرہ شریف کا رویہ اپنے ساتھی فنکاروں کے ساتھ بالکل تبدیل ہو گیا تھا. وہ طلاق کے صدمہ میں کچھ عرصہ بیمار تو رہیں مگر اس نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کے ہمسر لوگوں نے دیکھا کہ اب وہ پہلے والی بابرہ شریف نہیں رہی تھی بلکہ وہ ایک بے باک اور ناڈر بابرہ بن چکی تھیں. بابرہ شریف اپنی طلاق پر اٹھنے والی انگلیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام پر فوکس کرنا چاہتی تھیں اور انہوں نے اپنی اولین ترجیح میں اپنے کام کو ہی شامل کر لیا تھا. وہ اکیلی گھر سے فلم سٹوڈیو جاتی اور اکیلی ہی فلم سٹوڈیو سے گھر واپس آ جاتی تھیں. وہ اپنی کار کو خود ہی ڈرائیو کرتی تھیں. اسے دن اور رات میں اکیلے فلم سٹوڈیو جانے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا. فلمی دنیا والوں کے لیے بابرہ کا یہ نیا چہرہ انتہائی خوشگوار ثابت ہوا تھا. فلم پروڈیوسرز اور ڈائریکٹر کے لیے بابرہ کی شاہد سے طلاق کوئی مسئلہ نہ بنی کیونکہ بابرہ شریف نے شاہد سے طلاق تو ضرور لی مگر اس کے ساتھ سائن کی ہوئی تمام فلموں کو بڑی خوش اسلوبی سے مکمل کروایا اور بابرہ شریف نے زیر تکمیل فلموں میں جب شاہد کے ساتھ رومانوی سین فلم بند کروائے تو وہ اس وقت یہ بھول جاتی تھیں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اس سے بے وفائی کی ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹر کی ڈیمانڈ کے مطابق ہی کام کرتی تھیں تاکہ فلم ساز کو کوئی نقصان نہ ہو. شکریہ ہم سفر ہم نہ ملتے اگر دیا آپ نے مہربانی.
मगर दूसरी तरफ शाहिद की जिंदगी में बाबरा से पहले कई लड़कियां आ चुकी थीं, क्योंकि शाहिद के एक दोस्त जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि शाहिद शादीशुदा होने के बावजूद हर वीकेंड पर एक नई खूबसूरत लड़की के साथ होटल का कमरा बुक करवाता था। अदाकार शाहिद ने बकायदा तौर पर कुल 4 शादियां की थी, जिनमें पहली शादी मंजा खातून से हुई है उनकी, जो कि अरेंज मैरिज थी, जो उनके साथ अभी भी हैं। जबकि दूसरी शादी उन्होंने अदाकारा जुमुर से, तीसरी शादी उन्होंने अदाकारा बाबरा शरीफ से, जबकि चौथी शादी उन्होंने अदाकारा इशरत चौधरी से की थी। अदाकार शाहिद की पहली बीवी मुनज़्ज़ा की शादी के अलावा बाकी तमाम शादियां तलाक पर खत्म हुई। अदाकार शाहिद के पहली बीवी से 2 बेटे जहीर शाहिद और कामरान शाहिद हैं। आपका बेटा कामरान शाहिद मशहूर टीवी एंकर है, जबकि दूसरी बीवी अदाकारा जुमुरत से आपकी एक बेटी है। दोस्तों, ये था बाबरा शरीफ की जिंदगी का वो हिस्सा जो शाहिद के साथ गुजरा था। बाबरा शरीफ की जिंदगी में अदाकार फैसल रहमान जब दाखिल हुए तो फैसल रहमान और बाबरा शरीफ ने सबसे पहले जिस फिल्म में काम किया उस फिल्म का नाम था अलादीन। फैसल रहमान अदाकारा बाबरा शरीफ से उम्र में तकरीबन 10 साल छोटे थे। फैसल रहमान का तल्लुक फिल्मी घराने से था। उनके अंकल रहमान इंडिया के मशहूर अदाकार थे, जबकि उनके वालिद मसूद रहमान कैमरामैन थे। फैसल एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली से तल्लुक रखता था। फैसल रहमान को सबसे पहले हिदायतकार नजरुल इस्लाम ने अपनी फिल्म नहीं अभी नहीं में मुतारफ कराया था और इस नए अदाकार ने लेजेंड अदाकारा शबनम के मद्दे मुकाबल अदाकारी करके साबित कर दिया था कि वो एक पैदाइशी अदाकार है। फैसल ने अपनी पहली फिल्म नहीं अभी नहीं में लाजवाब अदाकारी से फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को बता दिया था कि वो आने वाली फिल्मों में एक हीरो का किरदार बेहतरीन तरीके से निभा सकता है। एक तरफ तो फैसल बाबरा की जिंदगी में दाखिल हो गया तो दूसरी तरफ बाबरा ने जिंदगी गुजारने का ढंग सीख लिया था। यही वजह थी कि बाबरा ने अपने दिली मामलात को छुपाने का गुर भी सीख लिया था। अदाकारा बाबरा शरीफ जब भी फैसल से मिलती बात करती तो बड़ी खुश उसलूबी से उसके साथ पेश आती थी और फैसल ये समझते थे कि वो सीनियर अदाकारा हैं, इसलिए वो उन पर मेहरबान हैं। मगर जब बाबरा शरीफ की मेहरबानियां बढ़ने लगी तो फैसल को जल्द महसूस हो गया कि बाबरा उससे मोहब्बत करने लगी हैं। बेशक फैसल उम्र में बाबरा शरीफ से कई साल छोटा था। दोस्तों, फिल्मी माहौल जल्द ही इंसान को मैच्योर कर देता है और फैसल भी फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद मैच्योर हो चुके थे। पाकिस्तानी फिल्म वफा जब बनने जा रही थी तो हिदायतकार ने उन दोनों को अपनी फिल्म में बतौर हीरो और हीरोइन कास्ट कर लिया। एक तरफ तो फिल्म का नाम वफा था, दूसरी तरफ फैसल और बाबरा शरीफ के अंदर भी मोहब्बत के फूल खिलने लगे थे। इस फिल्म के कंप्लीट होते ही हिदायतकारा शमीम आरा ने एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था मिस श्रीलंका और शमीम आरा ने भी अपनी फिल्म के लिए बतौर हीरो फैसल को चुना और बतौर हीरोइन अदाकारा बाबरा शरीफ को सिलेक्ट किया। और इस तरह शमीम आरा ही वो अदाकारा थी, वो डायरेक्टर थी जिन्होंने उन दोनों को मजीद करीब आने का मौका दिया, क्योंकि फिल्म की शूटिंग श्रीलंका में हो रही थी और वो दोनों एक ही होटल में ठहरे हुए थे। जब भी कोई एक्टर और एक्ट्रेस आपस में हकीकी मोहब्बत करने लग जाते हैं तो फिल्म साज उनसे खुलकर रोमानवी मुनाजर अपनी फिल्मों में बंद करवाते हैं। डायरेक्टर शमीम आरा बाबरा को अपनी मुंह बोली बेटी कहती थी। उन्होंने जब देखा कि बाबरा शरीफ और फैसल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उन्होंने बाबरा को मना करने के बजाय उसकी मदद करना शुरू कर दी। दूसरे फिल्म डायरेक्टर्स के देखा देखी शुबाब करानवी के बेटे जफर शुबाब ने भी अपनी फिल्म महक के लिए अदाकार फैसल और अदाकारा बाबरा शरीफ को ही बतौर हीरो और हीरोइन कास्ट किया। अभी इस फिल्म की शूटिंग चल ही रही थी तो शमीम आरा ने एक दफा फिर फिल्म मिस सिंगापुर में फैसल को हीरो और बाबरा शरीफ को बतौर हीरोइन ले लिया। कुदरत और हालात ने उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत बना दिया। दोस्तों, आप बात करते हैं कि ये लवर बर्ड फिर किस तरह एक दूसरे से दूर हुए। फिल्म प्रोड्यूसर्स और हिदायतकार इस जोड़ी से जिस तरह की तवक्कात रखते थे और जितना पैसा फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उनकी फिल्मों पर लगाया था और जितना वो रेवेन्यू हासिल करना चाहते थे, उसके बरक्स अदाकार फैसल और बाबरा शरीफ की फिल्म मिस सिंगापुर के अलावा कोई भी फिल्म उन दोनों की बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस ना कर सकी। दूसरी तरफ फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को शिकायत थी कि फैसल रहमान अपनी फिल्मों को संजीदगी से तवज्जो नहीं देते। शायद फैसल मगरूर हो गया था कि बाबरा शरीफ उनके साथ हैं और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बाबरा शरीफ की वजह से फिल्म साजों को उसे हीरो लेना ही पड़ेगा। लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी। जो ही फिल्म साजों ने महसूस किया कि फैसल रहमान और बाबरा शरीफ की जोड़ी वो रिजल्ट नहीं दे रही जिसकी
उनसे तवक्का की जा रही है, तब उन्होंने बाबरा शरीफ के साथ दूसरे हीरो कास्ट करने शुरू कर दिए, जिनमें फैसल रहमान का दोस्त अदाकार अय्याज नाइक काबिल जिक्र है। अदाकार अय्याज नाइक को फैसल रहमान की निस्बत फिल्म डायरेक्टर्स ने अपने काम में ज्यादा संजीदा पाया और इस तरह बाबरा शरीफ फैसल रहमान से दूर होती गईं। फैसल रहमान का अपनी फिल्मों की डेट्स के लिए संजीदा ना होना फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए तकलीफ दे था, इसलिए उन्होंने फैसल रहमान को अपनी फिल्मों में कास्ट करना भी बंद कर दिया। दूसरी तरफ बाबरा शरीफ ने भी अपने कैरियर को प्रायोरिटी दी और उन्होंने फैसल रहमान से ऐसा ऐसा दूरी इख्तियार कर ली। फैसल रहमान बाबरा शरीफ को अपनी पहली मोहब्बत मानते थे, मगर वो उसको पा ना सके, तो उन्होंने हीरोइन का नशा करना शुरू कर दिया और बिस्तरे मर्ग पर पहुंच गए। दोस्तों, जब फैसल को नशा की लत लग गई थी, उस वक्त बाबरा शरीफ ने उससे कोई सहारा ना दिया। फिल्मी सहाफी कहते हैं कि बाबरा शरीफ ने अदाकार शाहद की बेवफाई का बदला फैसल रहमान से बेवफाई करके लिया। दोस्तों, बाबरा शरीफ अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी हैं, ना तो उन्होंने दूसरी शादी की है और ना ही फैसल रहमान ने शादी की है। बाबरा शरीफ ने अपनी एक्टिविटीज अपने घर तक महदूद कर रखी हैं और अपने घर में कई एक जानवरों को पाल रखा है, उनके साथ ही वो अपना वक्त गुजारती हैं। अदाकार फैसल रहमान भी काफी अरसा बैरून मुल्क में रहे, फिर उन्होंने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में मौजूद निजी टेलीविजन को ज्वाइन कर लिया और आजकल वो कई एक ड्रामों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखा रहे हैं। प्रोग्राम में या शो में उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा जाता है तो वो सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। देखते ही देखते प्यार हो गया, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया, मैं गुमसुम सोचता रहा और दिल सिरे से फरार हो गया। दोस्तों, ये थी कहानी अदाकार फैसल रहमान और बाबरा शरीफ की मोहब्बत की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप हमारे चैनल पर यानी कि YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।